I get the 2 international gold medals, one in sports sambo and one in combat sambo. My dad wanted to me win the medal for India. And the warm water in his eyes. I think that was a real achievement in my life. बहुत जिद्दी है. तुझं इन्स्पिरेशन कोण आहे? My inspiration is my dad. मैं रिक्शा भी चलाता हूँ. उसको मोबाइल ही नहीं है. स्पोर्ट के लिए जो कोई मेरे बीबी के गहने थे, सोना तो कुछ थोड़ा फार था, वो हमने रख के बैंक में रख के उनमें से जो भी कोई पैसे मिले. All of us know sports is necessary for an individual growth and development. Success in sport isn't given, is earned through sweat, tears and hard work. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. पैसे नहीं, ग्राउंड नहीं, फिर भी बिना डरे, बिना लड़खड़ाए अपनी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. आज हम ऐसे ही एक मल्टी टैलेंटेड एथलीट सानिया से मिलने वाले हैं जो एक सैम्बो रेसलर है. Today's episode is special one as we are raising fund to overcome financial obstacles in her path. Kindly check the link in the description for donation. Hope you will all come to support her with open hands. After a long wait of 2 months, we are here at Sania's residence. She was really busy with her international championships and 12th board exams, and now she's free. So let's have a quick chat with her. Hi Sania. Hi, How are you? I'm nice. Good. इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितने 19 गोल्ड मेडल्स, Yes. राइट? एंड कितने सिल्वर मेडल मिले हैं? Total medals, 21 medals are there. ओके 7 silver medals, 19 gold medals. ओके, व्हाट एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट. तो ये जर्नी कहाँ से चालू हो गया आपका? When I'm in 5th standard, I was playing kabaddi. From that time, my favorite game is kabaddi. But from last year, in month of February, there was state sambo championship in Solapur, which I participate in that competition and I win silver medal by practicing hardly 3 or 4 days. And that time I decided I want to career in this game. And in the month of November, I win international 2 gold medals. Amazing. With these many achievements, what exactly are the sports that you're playing now? I played 9 different types of games. कबड्डी, जुडो, एथलेटिक्स में 4 इवेंट में खेलती हूँ. स्पोर्ट्स सैम्बो, कॉम्बैट सैम्बो और एक्सेट्रा. सैम्बो इज अ स्पोर्ट सैम्बो मीन्स wrestling which played on mat and there is a costume which we wear. And the combat sambo means there is a fighting like wushu and body have a safeguards we wear. आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? My dad wanted to me win the medal for India. When I did it, that moment, the happiness in his eyes and the warm water in his eyes, I think that was a real achievement in my life and that is my victory. Oh, that's really very touching, and your parents must be really proud of you. In fact, we Yes. all are proud of you that you got a medal for India. Most of the teenagers of your age, I have seen scroll करते रहते हैं, इंस्टा है, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, और इस एज में आप इतना सारा अचीव किए हो. What is your daily routine? How do you manage your school and ये सब practices वगैरह कैसे मैनेज करते हो? Early in the morning, I wake up at 6 o'clock and go for the exercise. After 1 or 2 hours of exercise, I take my nutrition. After that, What kind of nutrition do you take? I take ठंडाई नाम का वो पहलवान का होता है वो. पहलवान के लिए रहता है हाँ, क्या? पहलवान Okay. के लिए रखा है वो लेती हूँ. और अंडी,
kale, doodh, ये after that at 12 o'clock I go for college till 5 o'clock. After that come at home back 6 o'clock. Then I go for my wrestling practice and come back at 8:30. So you have a daily routine which is very packed. Yes. बट आपको कभी बोर नहीं लगता क्या? बिकॉज बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं एंड दे ईट जंक फूड. आपका इतना ज़्यादा रूटीन है, जैसे खाते भी है तो आप डाइट वगैरह देख के खाते हो. डोंट यू गेट बोर्ड? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? बोर तो लगता है बट संडे इज देयर to eat संडे junk चीट food. डे है. हाँ, ओके. Sunday is there and I maintain my motivation by setting clear goals and breaking them down in the manageable tasks and enjoying every small victory along the way. तो क्या, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? I want to be a IS. IAS? Yes. Nice. Okay. And bring medal in Olympic game. ओलंपिक गेम्स में? Yes. दैट्स अमेजिंग. तो आपके उसके लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट ऑल द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग नाउ? Nowadays I am studying MPSC and UPSC studying and practicing for Olympic tournament. अमेजिंग. कॉम्बैट स्पोर्ट्स में फाइट से पहले अपोनेंट को एक स्कैन करते हैं. डू यू गेट स्केयर्ड व्हेन यू सी दैट अपोनेंट की ऐसे बटरफ्लाइज आते हैं स्टमक में? क्या होता है एंड हाउ डू यू कम बैक एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट फियर? मुझे स्कैन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. मेरा गोल ही है कि गोल्ड मेडल लाना है. तो मेरे को मालूम रहता है कि मैं इस प्लेयर को लूज करने वाली हूँ और मैं जीतने वाली हूँ. ये मेरे में एक कॉन्फिडेंस रहता है जब मैं खेलने को जाती हूँ. तब स्कैन करने का ये कभी आता ही नहीं है. लेकिन जब बांग्लादेश में आपका जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए आप गए थे, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान जी ओपोनेंट थी वो आपके सामने थी, ठीक है, और जनरली भारत पाकिस्तान जब आप सोचते हैं तो एक अंदर से एक कुछ अलग ही फीलिंग रहता है. तो तभी डर नहीं लगा आपको कि ये पाकिस्तान के साथ मैं खेल रही हूँ और ये कैसे खेलेगी और क्या होगा? मेरी विश ही थी की मेरी मॅच पाकिस्तान के लड़के से लगनी चाहिए. अरे वाह. और ती मॅच मी असं म्हणजे एवढे एफर्ट्स तिथे घेतले होते, एवढी प्रॅक्टिस केली होती, त्याचं काहीतरी मला म्हणजे असं फळ भेटलंच पाहिजे. म्हणून असंच डोक्यात होतं की जिंकायचं तर आहेच, पण पाकिस्तान असो कोणी असो काहीच फरक नहीं. अपन एवढे कष्ट घेतले तो अपन जिंकूनच जायचं. जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं 10 लड़कियों से मैं प्रैक्टिस करती हूँ. अलग अलग 10 लड़कियों से मुझे अलग अलग स्किल सीखना मिलता है. और वो स्किल में जब मैं फाइट खेलती हूँ, अलग अलग स्किल जब म्हणजे ज्यावेळेस जे स्किल उपयोगी पडेल त्यावेळेस ते स्किल मी 10 मुलींकडनं शिकलेले 10 वेगळे स्किल मी त्या फाईटमध्ये यूज करते. युअर डिटर्मिनेशन लीड्स टू युअर सक्सेस. जेव्हा माझी फर्स्ट इंटरनॅशनल मॅच होती बांगलादेशमध्ये तेव्हा तिथे वायफायचा टॉवर जाळला होता आणि कॉन्टॅक्ट नव्हतं करता येत घरी मला. जेव्हा ज्या दिवशी माझी मॅच होती तेव्हा मी जिंकली आहे हे सांगत सुद्धा मला घरी येत नव्हतं. मला कॉन्टॅक्ट म्हणजे फोनला वायफाय नव्हतं, सिम चालत नव्हतं. मी माझा एवढा स्वर्ण दिवस होता. यू कुडंट शेअर. खूप जास्त इमोशनल आहे ना तू. हाऊ कॅन. आणि तू रिंगवरती इतकी कशी स्ट्रॉंग आहे? रिंगवरती गेल्यावरती तेवढंच असतं डोक्यात. तेवढंच असतं डोक्यात, दुसरं काही नसतं. बाकी काही दुसऱ्या समोर दिसतच नाही. हाँ. आपके छोटे बालों के पीछे भी कोई राज है? इज इट लाइक आपके स्पोर्ट जो आप खेलते हैं उसमें यू आर नॉट सपोज टू ग्रो योर हेयर? असं नाही आहे की केस वाढवायची नाही असतात. माझी लहानपणी अशी इच्छा होती की जोपर्यंत मी इंडियाला मेडल देत नाही तोपर्यंत मी केस वाढवणार नाही. पण मला असं वाटलं नव्हतं की मी एवढ्या अर्लियर म्हणजे एवढ्या कमी वयामध्ये इंडियाला मेडल देईल. माता लांब करणार का? नाही, जोपर्यंत अंगावरती खाकी नाही तोपर्यंत डोक्यावरती केस नाही. ये सानिया के फादर है. सर आपका नाम? मेरा नाम पप्पू कंदर है. मेरी शुरुआत तो पूना से एक ऑटो रिक्शा वाला ऑटो ड्राइवर से हुई है. ओके. हाँ. तो मैं अभी जो अपना अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ जो है उनका मैं संपर्क प्रमुख हूँ महाराष्ट्र का. और इन्हीं से टाइम इज़ मनी. इसके लिए जो कोई भी 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले तो उनमें से मैं रिक्शा भी चलाता हूँ. जनरली पेरेंट्स को रहता है कि लड़की है तो ये ऐसे काइंड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं डालना है, या कबड्डी है या सैम्बो जो वो खेलती है, इट्स अ वेरी रिस्की गेम. सो आप कैसे उसको सपोर्ट करते हो? बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स को रहते हैं कि स्टडीज़ करो, अच्छे कोई तो ग्रेड्स लाओ, शादी कर लो,
अपने पैर पे खड़े हो जाओ. बट हाउ डिड यू चूज दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट? मेरे बारे में भी ऐसा हुआ है, सानिया के बारे में भी ऐसा हुआ कि जो मेरे कोई रिलेटिव जो है तो वो बोलते थे कि ये जो सैम्बो जो गेम है तो शॉर्ट पहनने के लिए रहती है, कबड्डी जो रहती है तो उनमें से भी शॉर्ट पहनना पड़ता है. लेकिन उनकी सानिया के बारे में भी ऐसा हुआ कि अरे वो ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. लेकिन जो सानिया की जो उम्मीद थी, उससे पहले मेरी जो उम्मीद थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी सोचा कि नहीं, जो मैंने नहीं किया ये मेरी लड़की करेगी. बट ये सभी फाइनेंशियली आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज अगर ऐसे कोई स्पोर्ट्स में अगर बच्चे जाते हैं तो यू नीड लॉट ऑफ बैकिंग, तो कोई स्पॉन्सर करता है या हाउ डज दिस वर्क? जो भी है मदद करने वाले, तो मेरे स्कूल के जो सर थे मेरे स्कूल के, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा फार मदद किया था. मेरा एक दोस्त है, उन्होंने थोड़ा फार मेरे को दिया था, वो हरीश मातेरे बोल के हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा प्यार करता है इससे, उन्होंने दिए थे. मेरे दाते सर बोल के हैं, बोराडे सर बोल के, सुंबे सर बोल के जो है, तो मेरे सर ने मेरे को 2-2, 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने दिया. तो एक सब करके मेरे को 30 तो 35 हज़ार रुपये मेरे पास इकट्ठा हुए थे. बाकी के जो कोई है तो मैंने बहुत जगह गया, हमारे MIDC में मैं गया था, सभी उधर फाइल दी आर्थिक के लिए, तो किसी ने नहीं मदद की. स्पोर्ट के लिए जो कोई मेरे बीबी के गहने थे, सोना तो कुछ थोड़ा फार था, वो हमने रख के बैंक में रख के, उनमें से जो भी कोई पैसे मिले, वो भी बैंक मैनेजर भी जो है यूनियन बैंक रहेंगे, PVC बैंक में रहेंगे, तो उनको भी पता है कि ये कितने बार सोना रखता है, निकलता है, और उनको मालूम है कि जब भी वो आता है तो मेरे से, मैं जाने से पहले उनको फ़ोन करता हूँ, सर मेरे पास सोना रखना. तो उनको मालूम है कि अभी कोई तो उसके सानिया पसंद के कोई भी तो गेम आ गई है, इसके लिए वो इधर आएंगे. बट इवेंचुअली आगे भी आपका क्या प्लान है? अगर उसको आगे कंटिन्यू करना, इंटरनेशनल वगैरह जाना है, तो कुछ सपोर्ट ऐसे स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट से मिलता है? गवर्नमेंट कोटा से तो कुछ भी नहीं अभी मिला, अभी तक नहीं. अभी तक 1 रुपया भी नहीं होगा इसमें. जो बच्चे खेलते हैं उनको आगे जाने के लिए उनके बारे में सोचना चाहिए. वो कोई भी एसोसिएशन हो, वो पुणे जिला कबड्डी एसोसिएशन हो, कुश्ती का एसोसिएशन हो, या पोर्ट सैम्बो का एसोसिएशन हो. आई रिक्वेस्ट द व्यूअर्स ऑल्सो, जो भी देख रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्हें स्पॉन्सर करना है, दे कैन कम अहेड एंड स्पॉन्सर हर, बिकॉज शी हैज़ वन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस एंड दीज किड्स आर आवर फ्यूचर. एंड वी ऑल, अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रहा है तो वी ऑल शुड सपोर्ट एंड स्टैंड फॉर द स्पोर्ट्स कोटा. मैं आपके चैनल से ये बात बोलना चाहूँगा कि मुलसी में जो MIDC है, हिंदुड़ी MIDC और हमारे पिरंगुट MIDC है, उन MIDC में से लाखों करोड़ों का जो CSR फंड रहता है, वो किधर जाता है किसी को भी मालूम नहीं है. 1% भी निकाला ना तो पूरा तालुका का जो भी कोई बच्चा है, कौन सी भी गेम में हो, तो वो पीछे नहीं रहेगा. तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास यहाँ पे ग्राउंड है? कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो आप? अभी हमारे बच्चे इधर कोथुड़ में जो बाग है, कोथुड़ के बाग में जाते हैं सुबह, और शाम को जो फिटनेस रहता है वो माथोबा टेकड़ी बोल के इधर बहुत बड़ा पहाड़ी है उधर. उधर में अभी तो उधर चालू है सब फिटनेस के लिए. हाँ. ओके. सो विदाउट हैविंग ग्राउंड ऑल्सो इतना कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच सकते हैं. अगर अच्छे फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गो फॉर ओलंपिक्स नाउ, है ना? लेकिन उन्होंने ये कि पॉलिटिक्स के लिए मैं आपके चैनल के बारे में बोलूँगा कि जो पॉलिटिक्स जो लीडर है, तो उन्होंने ऐसा इधर कोथुर के आजू बाजू में जो भी कोई है जगह रहेगी तो उधर करना चाहिए इधर. लेकिन नहीं है, यहाँ से बोले तो बालेवाड़ी जाने का, लेकिन अभी जो सिंपल लोग रहेंगे तो बालेवाड़ी जा नहीं सकते, आने जाने का जो खर्चा वो नहीं उठा सकते. थैंक यू सो मच सर, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू and congratulations and all the very best for your future. और अभी very soon we'll see our IAS officers. Yes. All the best. Thank you so आपल्या much. चॅनलच्या माध्यमातून माझ्या मुलीची मुलाखत घेतली, वेळ दिला, त्याबद्दल मी आपला चॅनलचा मनापासून आभारी आहे. Sania, this is a small token of love from Dreamcatchers team. Thank you so much. And all the best for your future. बहुत जिद्दी है.